یسوع کی صلیب سے کچھ پہلے پارٹ 1۔ بچوں، خدا داؤد کے زمانہ سے نبیوں کی زبانی یسوع کی طرف سے آنے والی نجات کی خوشخبری دیتا رہا۔ مدتوں پہلے جو عیدیں اور تہوار یسوع کی آنے والی نجات کی علامت کے طور پر آسمانی باپ نے مقرر کیے تھے، ان کے متعلق بھی خدا نے اپنے لوگوں تک خبر پہنچا دی کہ یسوع ان کی تکمیل کے لیے دنیا میں آئے گا۔ یسوع کے صلیب پانے سے ایک ہفتہ پہلے کے حالات و واقعات کے ذریعہ خدا نے کس طرح گزرے زمانوں میں کہی ایک ایک بات پوری کر دکھائی۔ زکریا کی زبانی فرمائے گئے کلام کے مطابق، دیکھ میں اس پر کندہ کروں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ زکریا 3:9 آیت۔ اب آگے ہم دیکھیں گے خداوند یہوہ نے کس عمدگی سے یسوع کی صلیبی موت اور پھر جی اٹھنے کے لمحہ لمحہ کی ہر تفصیل مدتوں پہلے طے کر رکھی تھی۔ یوں واضح ہو جائے گا کہ مسیح خداوند ہی یسوع کے روپ میں دنیا میں ظاہر ہوا۔ چنانچہ جس وقت یہودا بڑے کاہن کے پاس پہنچا کہ یسوع کو پکڑوائے، یوحنا 13:31-32 آیت۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا، اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ یسوع فسح کا برہ۔ آئیں فسح کے برے پر بات کرتے ہیں۔ جب اسرائیلی مصر سے نکل رہے تھے، خدا نے انہیں حکم دیا۔ خروج 12:1-3 آیت۔ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے۔ خروج 12:5-6 آیت۔ تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ نہ رکھو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے۔ اس کا مطلب ہوا پہلے مہینہ کی 10 تاریخ کو اسرائیلیوں پر لازم تھا کہ ایک بے عیب برہ چن لیں، اسے 14 تاریخ تک باقی جانوروں سے الگ رکھیں۔ ان دنوں میں اگر برے میں کوئی عیب نظر نہ آئے تب یہ فسح کی قربانی کے اہل ہوگا۔ اس برہ کو فسح کی شام غروب آفتاب کے قریب ذبح کرنا ہوتا تھا۔ اس میں اس بات کی علامت تھی کہ اس برہ نے کس طرح اسرائیلیوں کی بجائے خود کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ جب اسرائیلیوں نے فسح کے برہ کی قربانی کا آغاز کیا تھا، اس کے 1400 سال بعد خدا کا برہ یسوع قربان ہوا۔ ان 1400 سالوں میں فسح کی ہر قربانی کا مطلب خدا کی طرف سے مہیا کیے جانے والے اصل برہ کی علامت اور اس کی مشق تھی۔ جب یسوع نے اپنی تبلیغی مہم کا آغاز کیا، یوحنا 1:29 آیت۔
दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। जबकि फसह का बर्रा यीशु की अलामत था, इसका मतलब हुआ पहले महीना की 10 तारीख को यीशु भी दूसरे सब लोगों से जुदा कर लिया जाएगा, ताकि उसकी खूब जांच पड़ताल की जाए और आखिरकार कुर्बान कर डाला जाए। आए देखते हैं हमारे बड़ी शान वाले आसमानी बाप ने किस तरह फसह के असल बर्रा की जलवा नुमाई फरमाई। यानी वो बर्रा जिसकी कुर्बानी की मशक इसराइली लगभग 1500 सालों से कर रहे थे। सलीब पाने से 4 दिन पहले यहूदी कैलेंडर के मुताबिक पहले महीना की 10 तारीख सबत का दिन था। यीशु एक गधे पर सवार शहर में दाखिल हुआ। मत्ती 21 बाब 1 से 3 आयत। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। मरकस 11 बाब 4 से 6 आयत। बस वो गए और बच्चे को दरवाजा के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा, ये क्या करते हो के गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। लूका 19 बाब 35 से 40 आयत। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मोजिज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगी के मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। बच्चों, जिस दिन यीशु यरूशलेम पहुंचा, वो दिन यहूदियों के लिए फसह का बर्रा चुनने के लिए मखसूस था, यानी पहले महीने की 10 तारीख। यहूदी लोग दूर दराज के इलाकों और हर समत से यरूशलेम में ईद फसह मनाने इकट्ठे हो जाया करते थे। शहर मुकद्दस की गलियां और बाजार आम लोगों और लावियों के हजूम से भरे पड़े थे। वो हाथों में खजूर की शाखें लिए मुंतजर थे कि बड़ा काहन जो फसह का बर्रा लेने बैतलहम गया है कब लौट कर आता है। जब बड़ा काहन फसह का बेऐब बर्रा लिए शहर मुकद्दस को लौटता, तो लोगों पर लाजम था
जोरदार आवाज और जोश से नारे लगाते, होशैना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। बड़े काहन की फसा के बर्रे के हमरा वापसी से पहले ही यसू बाजी ले गया और एक जवान गधे पर सवार शहर मुकद्दस में दाखिल हुआ। यसू के शागिर्दों के हजूम ने यसू को देखा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगी। जब शागिर्द खुशी के नारे लगाने लगे तो सारा हजूम उनके साथ शामिल हो गया, क्योंकि वो बेचैनी से बड़े काहन के इंतजार में थे कि वो कब फसा का बर्रा लिए आता है। यूं आन की आन में हर कोई यसू के हक में नारे लगाने लगा, मगर फरीसी तैश में दिल मिलाने लगे। वो चाहते थे शागिर्दों को खामोश करवा दिया जाए, मगर यसू ने फरमाया, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यसू फसा का असल बर्रा था, बेऐब और खुदा का चुना हुआ बर्रा। इसराइली 1400 बरस से असल कुर्बानी के इंतजार में जानवरों की कुर्बानियां किए चले जा रहे थे, और आज फसा का असल बर्रा उनके शहर में चला आया था। आसमान और जमीन कांप कर रह गए। अगर शागिर्द चीख चीख कर उसका खैर मकदम ना करते तो इस अजीम लम्हे खुदावंद की शान में पत्थर तक पुकार उठते। यूहन्ना 12 बाब 12 से 13 आयत। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुन करके यसू यरूशलेम में आता है। खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशैना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। लोका 19 बाब 36 आयत। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। मत्ती 21 बाब 9 से 11 आयत। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशैना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशैना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यसू है। मत्ती 21 बाब 4 से 5 आयत। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सयून की बेटी से कहो के देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बच्चों, यसू एक गधे पर सवार यरूशलेम में दाखिल हुआ। खुदा तो जमानों पहले 520 कबले मसीह के जमाना में जकरिया नबी की ज़बानी ये पेशन गोई कर चुका था। जकरिया 9 बाब 9 आयत। ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम
खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यूहन्ना 12 बाब 16 आयत। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यसू अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं। और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। जिस वक़्त शहर मुकद्दस में एक बड़ा हजूम फसा के बर्रे का सालाना दस्तूर के मुताबिक खैर मकदम करने बेचैनी से मुंतजर था, आसमानी बाप ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि फसा का असल बर्रा बड़े मजमा के जोशीले नारों और हमदो सताइश के जल्लों में शहर में दाखिल हो गया। बच्चों, ये सब नजारे तो मुद्दतों पहले ही खुदा की नजर में थे। यसू भी खूब जानता था ये जवान गधा उसे शहर मुकद्दस ले जाने को तैयार खड़ा है, क्योंकि ये सब बातें यसू की पैदाइश से कमो बेश 500 बरस पहले नबियों की जुबानी तहरीर में लाई जा चुकी थीं। बच्चों, ये बात तय कर रखने के साथ साथ के यीशु एक जवान गधे पर सवार शहर में दाखिल होगा। खुदा ने ये भी सोच रखा था कि फसा का असल बर्रा सबत के दिन शहर में दाखिल होगा। बच्चों, सबत के दिन किसी जानवर से कोई मशक्कत नहीं ली जाती थी और ना ही उन पर सवारी की जाती, मगर यसू एक गधे पर सवार हुआ, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। लोका 19 बाब 30 आयत। मतलब ये हुआ कि जिस गधे पर यसू ने सवारी की उससे कभी कोई काम नहीं लिया गया था। यानी इस तरह सबत का कानून मुतासर नहीं हुआ। बच्चों, क्या हमारे आसमानी बाप के सारे काम इंतहाई नपे तुले नहीं होते? जब यसू हैकल में दाखिल हुआ, वो जानता था कि वो फसा का असल बर्रा है और जल्द ही मार डाला जाएगा। चुनांचे उसने इस कलील से वक़्त को कारआमद बनाया और लोगों को तौबा कर लेने की दावत दी। यूहन्ना 12 बाब 44 से 47 आयत। यसू ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूँ। जब यसू नसीहत कर चुका, मरकस 11 बाब 11 आयत। और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीजें मुलाहिजा करके उन 12 के साथ बैत अनिया को गया, क्योंकि शाम हो गई थी। ये पहले महीना की 10 तारीख थी। यसू जाहो जलाल के साथ यरूशलेम में दाखिल हुआ। तब वो हैकल के सहन में गया। वहां उसने लोगों को अच्छी जिंदगी का असलूब सिखाया, उन्हें खुदा के कलाम की रोशनी में चलने की तलकीन की। इसके बाद बैत अनिया में मरियम के घर
اپنے رفیقوں کے ساتھ وقت گزاری کے لیے تشریف لے گیا۔ سلیب پانے سے 3 دن پہلے یہودی کیلنڈر کے مطابق پہلے مہینے کی 10 تاریخ اور اتوار کا دن تھا۔ یسوع نے انجیر کے ایک درخت پر لعنت کی۔ مرکز 11 باب 12 سے 14 آیت۔ دوسرے دن جب وہ بیت عنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے۔ مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اس نے اس سے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے۔ اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ بچوں، یہ فسح سے 3 دن پہلے کی صبح تھی۔ یسوع نے انجیر کے ایک درخت پر لعنت کی، آئندہ کبھی اس پر پھل نہ لگے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ انجیر کا درخت دور سے تو خوب ہرا بھرا دکھائی دیتا تھا، اس کا مطلب تھا اس میں پختہ اور کھانے کے قابل پھل بھی ہونا چاہیے تھا۔ بائبل اس نقطہ کو واضح بیان کرتی ہے۔ کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ یعنی کسان پھل جمع کرنے نہیں آئے تھے، کیونکہ ابھی پھلوں کا بھرپور موسم نہیں آیا تھا۔ مطلب یہ کہ درخت میں کچھ نہ کچھ پکے ہوئے پھل ضرور ہونے چاہیے تھے، مگر جب یسوع اس کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی پھل نہ پایا۔ بچوں، بائبل میں انجیر کے درخت کا ذکر اکثر اسرائیل کی علامت کے لیے استعمال ہوا۔ اسرائیل خدا کے حضور انسان کی نجات کا پہلا پھل مقرر ہوا۔ کیونکہ یہی وہ قوم تھی جس کے ساتھ خدا نے عہد باندھنے کے لیے اسے چنا تھا۔ یسوع نے درخت پر اس لیے لعنت کی کیونکہ اس میں وقت کی مناسبت سے خدا کے حضور پیش کیے جانے کو پہلا پھل نہیں تھا۔ یسوع کا اس بات سے اصل مقصد یہ سمجھانا تھا کہ یہودیوں کے پاس خدا کی بہت سی برکات تو تھیں، مگر ان کی زندگیاں بے ثمر تھیں۔ وہ بہت سی مذہبی رسموں میں الجھے رہتے، مگر اپنے اجداد کے خدا سے نا واقف تھے۔ کیا ان کی زندگیاں بالکل اس درخت کی طرح نہیں تھی جس میں پتے تو تھے مگر کوئی پھل نہ تھا؟ انجیر کے درخت سے ایسا کہنے کے بعد یسوع یروشلم کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ شہر کے دروازہ پر پہنچا، یسوع بلک اٹھا۔ بچوں، یہ کیا ہوا؟ یسوع نے یروشلم پر افسوس کیا۔ لوکا 19 باب 41 سے 44 آیت۔ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ بچوں، یسوع نے قدرے فاصلہ سے یروشلم پر نگاہ کی۔ اسے احساس تھا کہ اس شہر میں اسے شریعت کے عالموں اور بڑے کاہن کے ہاتھوں دکھ اٹھانا ہوگا۔ جب اس نے شہر مقدس اور خدا کے ہیکل کی طرف دیکھا
जो उसके अपने नाम में तामीर हुआ था, तो उसकी आंखें भर आईं। क्योंकि जमाना कदीम से ये शहर अपने गुनहगार बासियों के हाथों लोगों में कत्लो गारत कराता और नबियों के लिए इसे अजियतनाक बनाता आया है। वो इसके गारतगरों के हाथों कस्बा ब कस्बा और शहर ब शहर भटकते रहे थे। इसराइलियों को शहर मुकद्दस पर खुदा का फजल कभी भाया ही नहीं। यसू शहर में दाखिला से पहले एक पहाड़ी पर बैठ गया। उसे आने वाले दिनों में शहर पर टूटने वाली बर्बादियों का ख्याल आया और वो बिलक उठा। मत्ती 23 बाब 37 से 39 आयत। ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से मुझे फिर हरगिज न देखोगे, जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। बच्चों, यसू अपने ऊपर आने वाली अजियतों के तसव्वुर से नहीं रोया था, बल्कि मुस्तकबिल करीब में शहर मुकद्दस की बर्बादी के तसव्वुर से दुखी था। क्योंकि इस शहर के बासी खुदा के नबियों को सताते रहे थे। और अब हद ये थी कि वो खुदा की तरफ से भेजे गए उसके इकलौते बेटे पर हाथ उठाने को थे। अगरचे यसू की ख्वाहिश तो यही थी कि सारे यरूशलेम को यूं अपनी पनाह में ले जैसे मुर्गी अपने चूजों को परों तले जमा कर लेती है। मगर लोगों ने उसे रद्द कर दिया। चुनांचे यसू ने फरमाया कि लोग उस वक्त तक उसे नहीं देख पाएंगे जब तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर लेते। उसे खुदा का भेजा हुआ मान नहीं लेते और ये कहते हुए खुदा की तमजीद नहीं करते कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। बच्चों, इस तरह ये ताजीम बड़े काहिन और फसा के बर्रे को दी जाती थी। यसू ने कहा, जब इसराइली इस हकीकत को जान लेंगे कि यसू ही फसह का असल बर्रा है, जो उनकी खातिर कुर्बान कर दिया गया, और जब वो उसकी आमद पर उसके खैर मकदम को दिल से तैयार होंगे, उसकी बंदगी करेंगे, उसके नाम की दुहाई देंगे, तब वो उसे दोबारा देख पाएंगे। तब यसू की दोबारा वापसी होगी। बच्चों, ये सलीब से 3 दिन पहले का वक्त था। यसू ने इंजीर के दरख्त पर लानत की और यरूशलेम पर रोया। तब वो शहर में दाखिल हो गया। उस वक्त लोग हर तरफ से फसा का जश्न मनाने वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। हैकल के हर तरफ लोग जमा थे। हैकल के सेहन की सफाई। मत्ती 21 बाब 12 आयत। और यसू ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। मत्ती 21 बाब 13 से 14 आयत। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा,
मगर तुम उसे डाकुओं की खूह बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। क्योंकि यसू ने हैकल के काहनों को बुरा भला कहा कि उन्होंने इस मकाम को चोरों की खोह बना रखा था। मरकस 11 बाब 18 आयत। और सरदार काहन और फकीर ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे। इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान थे। बच्चों, यहूदियों के लिए फसह का दिन साल का अहम तरीन मौका होता था। इसराइल का सारा मुल्क बल्कि सारी दुनिया के इसराइली बड़ी बेताबी से मुंतजर रहते कि कब ये दिन आए और वो सब यरूशलेम में इकट्ठे होकर कुर्बानियां गुजारें और अबादत के फराइज अंजाम दें। दूसरे कस्बों से आए हुए लोगों को माल मुआशी, भेड़ें, कबूतर वगैरह खरीदना होते ताकि कुर्बानियों की अदायगी कर सकें। उन्हें रेजगारी की भी जरूरत होती कि हैकल को चंदा दे सकें। यानी कारोबारी अफराद के लिए ये साल का बेहतरीन मौका होता था। वो अपने जानवर बेचने चले आते और हैकल में रकम का लेन देन भी शुरू हो जाता। मुकद्दस हैकल एक पहाड़ी पर तामीर किया गया था। खुदा चाहता था लोग अपने कुर्बानी के जानवर शैलूख के कुएं पर लाएं। उन्हें खुदावंद के लिए पाक करें, उसके बाद अपनी कुर्बानियां लाकर मुकद्दस हैकल में काहनों के हवाला करें। मगर इसके बरअक्स होता यूं था कि काहन खुद जानवरों को पाक कर रखते और हैकल के बाहर यूं ही बड़ी भारी कीमत पर उन लोगों के हाथ बेच देते जो त्योहारों के मौके पर दूर दराज इलाकों से वहां आते थे। ये हजरात कारोबार में किसी किस्म के इंसाफ और रवादारी के कायल नहीं थे। हैकल के अंदर और बाहर सारे कारोबार पर वो अपनी इजारादारी के पंजे गाड़े बैठे थे। खास तौर पर ऐसे वक्त जब लोग खुदावंद के लिए पाक किए गए जानवर लेकर मुकद्दस हैकल का रुख करते, उन्हें चाहिए था दिलों में खौफे खुदा लेकर आते। मगर जब यसू मुकद्दस हैकल में दाखिल हुआ, कारोबारी शोर और जानवरों की डकारों से वो जगह अटी पड़ी थी। हैकल के जिम्मेदार काहनों पर लाजम था लोगों को तौरात की बातें सिखाते, मगर वो तो चोरों की चादर ओढ़े बैठे थे। उन्होंने खुदा के शान वाले घर को ऐसी कारोबारी मंडी बना रखा था जहां हर तरह से लोगों को लूटने का काम जारी था। जैसे चोरों मुफाद परस्तों की आमाजगाह। यसू की ख्वाहिश थी आसमानी बाप का हैकल एक दिन सब कौमों के लिए दुआ का घर हो जाए। सब कौमें यहाँ इकट्ठी होकर एक खुदा की इबादत करें। इसके बरक्स वो काहन जिन पर लाजिम था कि लोगों को खुदा के कानून सिखाते, अब उन पर नामनासब हथकंडों से दौलत इकट्ठी करने की धुन सवार हो चुकी थी। यूं वो खुदा के नाम के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन चुके थे। इन सब बातों को देखकर यसू बेचैन हो गया कि आखिर कब वो दिन आएगा जब खुदा का मुकद्दस हैकल सब कौमों के लिए दुआ का घर बन पाएगा। जब यसू ने इन सारे व्यापारियों को भगा दिया और लोगों पर सच्चाई वाजे कर दी, तो लोग यसू की तालीमात से बहुत मुतासिर हुए। यसू अंधों और लंगड़ों को शफा देता रहा।
क्योंकि आसमानी बाप का घर था ही इसलिए कि लोग शफा पाएं और उनकी रूहें गुनाह की बंदिशों से आजाद हो जाएं। ये ऐसी जगह नहीं थी जहाँ लोग धोखा और हीलाबाजियों की भेंट चढ़ते रहें। चुनांचे काहिन और शरीयत के आलिम यसू से नफरत में और भी आगे बढ़ गए। वो हमेशा की तरह इस साल भी खूब धन कमा सकते थे, मगर यसू ने उनके कारोबार की जड़ काट डाली। चुनांचे उन्होंने यसू से जान छुड़ा लेने की मंसूबाबंदी तेज कर दी। यसू की सलीब से 3 दिन पहले के वाकयात कुछ यूं थे। पहले उसने इंजीर के उस दरख्त पर लानत की जो खूब हरा भरा होने के बावजूद फल से महरूम था। फिर यरूशलेम की बर्बादी के तसव्वुर से अश्क बहाए। तब मुकद्दस हैकल की तरफ चल दिया ताकि नारास्त और नामुनासिब कारोबार को वहां से निकाल बाहर करे। जाना पहचाना निकोदेमुस भी उस रात यसू के पास आया। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, जब यसू ने देखा इंजीर के दरख्त में पत्ते तो बहुत हैं, मगर फल कोई नहीं, तो उसने दरख्त पर लानत की कि आइंदा को इस पर फल ना लगे। यसू ने शहर मुकद्दस पर नजर की तो बिलक उठा, क्योंकि जब खुदा ने लोगों पर नजरे करम की तो उन्होंने परवाह तक ना की, बल्कि उनकी हरकतें अपने लिए तबाही व बर्बादी का तकाजा करने लगी। प्यारे आसमानी बाप, ये बात इतनी खौफनाक है। हम यसू की बख्शी हुई हयाते अबदी का अपने वजूद से कोई फल ना लाए या अपनी जिंदगी में आराम के लम्हात पर खुश होकर तेरा शुक्र अदा ना करें और तेरी नजर में सख्त अदालत के कसूरवार ठहरे। प्यारे आसमानी बाप, मुझ पर रहम खा, ऐसा शुक्रगुजार दिल अता फरमा जो जिंदगी की खुशगवार और सेहतमंद घड़ियों में 3 वक्त का खाना मिलने पर, पढ़ने लिखने को स्कूल जाने पर बिना खौफ पूरी आजादी से गलियों बाजारों से गुजरने पर, बाइबल के वाकयात सुनकर इत्मीनान पाने पर और खानदान के अफराद और सब दोस्तों को अपने इर्द गिर्द पाकर
लोग इंजीर के उस दरख्त की मिसाल हैं, जिसके पत्ते तो थे मगर फल कोई ना था। प्यारे आसमानी बाप, मेरी मदद फरमा, यसू के सारे फरमान याद रखूं। यसू ने नहायत संजीदा तंबीह फरमा दी, जिस तरह इसराइल की अदालत की जाएगी, उसी कानून पर दुनिया की सब कौमें भी अदालत की जद में आएंगी। प्यारे आसमानी बाप, मैं नहीं चाहता कि यसू की नजरों में बेसमर ठहरूं। प्यारे बाप, जबकि मैं अभी छोटा और मासूम सा नजर आता हूँ, ऐसे में मुझ पर अपना रहम फरमा, और अगर कभी तेरे हजूर नाफरमानी या सरकशी कर बैठूं, तो मुझसे मुंह ना मोड़ लेना। मुझे इतनी छूट ना देना कि मनमानी गुस्ताखियां करता चला जाऊं और कहीं यसू की नजात और उसका तहफ़्फ़ुज़ खो ना बैठूं। प्यारे आसमानी बाप, मुझे तेरे पैरों तले छुप बैठना नहायत भला लगा। तेरी आगोश में तेरी हिफाजत और तेरी गहरी तवज्जो में कितना सुकून है। प्यारे बाप, मुझे अपने मेहरबान गरम बाजुओं में छुपा ले। यसू के नाम में हम सब की दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों